بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصحاب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تہ حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پوڑ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گھرس مز یس زن مرد آسن چھ یا خامد آسن چھ تم سن ذمہ داری تمن ہند تہ آ ذکر اور یس خاتون یا خانداری آسن چھ تم سن کم ذمہ داری چھ گھرس مز بہرحال ان کا ذکر بھی آیا تھا. اور ضمن کریو اللہ تبارک و تعالیٰ امہ کتھ ہز تہ وضاحت کہ اگر یمن دون بٲژن پانویں اختلاف گژھِ بہرحال اختلاف کی صورتس مز کت کٹ ہیکن تم اخ أکِس اصلاح کرت. بہرحال اس کا مکمل بیان پچھلے درس میں آیا. أزیُک آیہ مبارکہ یُس زن میں تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تلاوت کوٚر اتھ منٛز چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العبادن ہُنٛد ذکر کوٚرمُت. حقوق العباد چھِ ونان تمن حقوقن جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو. أکِس انسانس پہ زٕ حق یم زن عائد گژھان چھِ. اکھ گوٚو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور دوٚیِم حق یم زن چھِ تم چھِ حقوق العباد. اور حقوق اللہ متعلق تھٲیِو تُہۍ یہِ کتھ یاد کہ حقوق اللہ اگرچہ یہ انتہائی اہم ہیں اور ان کا درجہ سب سے پہلے ہے مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے فضل سے معاف بھی کر سکتے ہیں. البتہ حقوق العباد یہ انتہائی سخت معاملہ ہے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر امن مز کانٛہہ کمی بیشی روز بہرحال قیامت کے دن تب تک یہ بہرحال معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ حقدار معاف نہ کرے. اور ات متعلق چھ شدید وعید قرآن پاکس مز تہ آمد بیان کرنے اور ات متعلق چھ شدید وعید آمد احادیث مبارکہن مز تہ بیان کرنے. بہرحال ام برونٹ کہ یم آیہ مبارکہ کرو اس ترجمانی ام برونٹ کہ یمن آیات یتھ آیہ مبارکس پہ کرو اس غور بی پیاناو اس یاد کہ سورہ نساء یُس زن چھ مے کریو عرض کہ سورہ نساء مز چھ سارے کھت زیادہ حقوق العبادی ہند ذکر آمد. سب سے پہلے ہم نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے بچوں کے حقوق کے بارے میں بھی پڑھا کہ وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملے گا. اور ام پتہ آو باقی رشتہ دار یم زن چھ تہند حقوق تہ آئے بیان کرنے. اور اتھے پٲٹھنس آئے میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں ان کا ذکر بھی ہم نے کل ہی پڑھا. اب یہ سارا یُس زن سورہ مبارکہ یُس زن چھ اتھ منٛز چھ حقوق العبادن پٮ۪ٹھٕے ساروی کھۄتہٕ زیادہ زور آمد دِنہٕ. لیکن یہ آیت جو آج کے درس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ات مز چھ حقوق العباد ساری مانتو تہ سمرائز آمد کرنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے. بہرحال اس لیے تھٲیِو تُہۍ ساری انتہائی توجہ سان اور انتہائی زن ونو اس کہ دھیان سان بوزِو تُہۍ ییٚمہِ آیہِ مبارکٕچ تفسیر. اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ ارشاد فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس آیت میں حقوق العباد کا بیان ہوا ہے مگر شروعات ہو رہی ہے حقوق اللہ سے. شروعات چھ گژھان کم سے حقوق اللہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ.
यानी हुकूकुल इबाद का तो असल में जिक्र आने वाला है, लेकिन इससे पहले हुकूकुल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। ये इस वजह से वजह यह कि तमाम हुकूकों मज सारे खुद सरस कम सिंद हुकूक, अल्लाह तबारक व तआला सिंद हुकूक। एक बंदा ऐसा है जो तमाम बंदों के हुकूक अदा करता है मगर अल्लाह के हक को पहचानता नहीं है। अल्लाह युस तमिस हक दिन ओस वो पहचानता नहीं है, उसके साथ शरीक बाकी लोगों को ठहराता है। ये हुकूकुल इबाद इसको कयामत के दिन फायदा नहीं देंगे। अब आव सारे खुद गोडनेथ जिक्र करने कम सिंदन हकन हुन, अल्लाह तबारक व तआला सिंदन हकन हुन। दूसरी वजह भी ये है कि हुकूकुल इबाद कर सुई इंसान पूर पड़ अदा युस गोड़ हुकूकुल्लाह अदा कर, यमिस खुदाई सुंद खौफ आस, यमिस सिंदिस दिलस मज अल्लाह तबारक व तआला सुंद तकवा आस, यम सिंदिस दिलस मज ये ख्याल आस कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना है। वरना अगर न कंस इंसान ये दिलस मज आस कि मैं पन्नन अमलन जवाब दिन, बताओ वो लोगों के साथ क्यों कर अच्छे सलूक से पेश आएगा, वो लोगों के साथ क्यों अच्छा और भला सलीका इख्तियार करेगा, या वो लोगों के हुकूक क्यों अदा करेगा। वो तो डाके डालेगा, वो तो उनके साथ जुल्म करेगा, वो तो उनके हुकूक तलब करेगा। मगर सो इंसान यमिस अल्लाह तबारक व तआला ब्रोट कहीं जवाब दही हुंद एहसास आस, बहरहाल वो हर एक के हक अदा करने वाला होगा। अवे आव यथनस गोड़ जिक्र करने कम सिंदन हकन हुंद, अल्लाह तबारक व तआला सिंद हक या हुकूकुल्लाह। अच्छा, अल्लाह का हक क्या है? बहरहाल उसको एक फिक्रे में बयान किया गया है, वअबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत की जाए। यानी खुदा सुन हक ये कि बंदे उसी की सिर्फ इबादत करें, किसी और के सामने अपने माथे को या अपने सर को न झुकाएं। वला तुश्रिकु बिही शैआ, और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराएं। जिसे सूरह फातिहा में पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये नहीं है कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं, ना, बल्कि सिर्फ तेरी ही इबादत, यानी चांद वराशन भी कंसी इबादत कर, तो ये हुकूकुल्लाह है। यानी हुकूकुल्लाह को एक फिक्रे में अगर बयान करना हो तो वो ये है कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत की जाए और किसी को उसके साथ शरीक न किया जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला युजन शिरक छ अमिच कुबाहत अमिच खबासत अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाकस में जय जय बयान करमज, और अहादीस में भी इसकी शदीद युजन वईद या शदीद मुखालफत की गई है कुरान पाकस में। और हम पढ़ेंगे, और ये बल्कि सूरह निसा में हमने पढ़ा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही, अल्लाह हरगिज उस शख्स की मगफिरत नहीं करेगा जो उसके साथ किसी को शरीक ठहराएगा। व यगफिरु मा दूना ज़ालिक, शिरक को छोड़कर जिसको चाहे उसको माफ कर सकता है। यानी यूता शदीद गुनाह ये शिरक कि इसकी अल्लाह के यहाँ तौबा के बगैर मगफिरत नहीं है, यानी तौबा वराई छनी अत गुनाहस या अत गलती माफी किया। इसीलिए सबसे पहला हक अल्लाह का है कि अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। ये तो हो गया अल्लाह का हक। वबिल वालिदैन इहसाना। अच्छा, अब हुकूकुल्लाह का बयान हो रहा है, और ये था याद कितनी अहमियत और क्या मकाम जो हुकूकुल इबादत है कि अल्लाह ने अपने हुकूक के साथ किनको जोड़ दिया, हुकूकुल इबाद को। यानी ईशान अलग आयत के एक ही आयत में एक ही फिक्रे में हुकूकुल्लाह को बयान किया गया, और अब किसको बयान किया जा रहा है, हुकूकुल इबाद। इससे इस बात की तरफ भी इशारा है कि एक इंसान की 100% कामयाबी हुकूकुल्लाह की अदायगी और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी के साथ मुंसलिक है। कोई शख्स सिर्फ हुकूकुल्लाह अदा करके कामयाब नहीं होगा, और कोई शख्स सिर्फ हुकूकुल इबाद ही अदा करके कामयाब, बल्कि कामयाबी इस शर्त के साथ मलजूम लाजिम व मलजूम है कि एक तो हुकूकुल्लाह भी अदा करने होंगे और हुकूकुल इबाद। अच्छा, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला दर्जा किनका है, वबिल वालिदैन इहसाना। हुकूकुल इबाद मुझे सारे खुद सरस पे हक तमसिन वालिदैन हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के बाद फौरन किनका हक बयान किया, वालिदैन का। वबिल वालिदैन इहसाना, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। बहरहाल क्या हुस्न सलूकी करना, इसकी तफसीर हम आगे चलकर इंशाअल्लाह रहमान सूरह बनी इसराइल में तफसील के साथ पढ़ेंगे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या,
कि तेरे रब ने यह फैसला किया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। वहां पर भी अल्लाह की इबादत के साथ फौरन किसको जोड़ दिया गया? वालिदैन की इताअत को, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को। अल्लाह तबारक व तआला फरमो कि अगर बिल फर्ज इनमें से यानी वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, यानी अगर चा ब्रोट कन यम दोयो मज अख या दशवई बुजरस वातन, वला तकुल लहुमा उफिन, इनको उफ तक मत कहना, यानी उफ त करजन उमन क्या। उफ कत वन? उफ गो मिसाल के तौर पर माल मज वन अमिस कम एम मान कम मगर तुम उफ उफ खुश कर या इस पर, तो अल्लाह तबारक व तआला इस उफ को भी बर्दाश्त नहीं करता है, बल्कि कुरान पाक ने दिया हुक्म वला तकुल लहुमा उफिन वला तनहरहुमा, और इनको झिड़को मत, यानी उमन खरक तन क्या। खरक कर क्या मतलब? ऐसा पता यह कित काम कर, ऐसा पता यह कर वन मे हेचन आम तौर पर मालिस माज बन। और यह अल्लाह ने बुढ़ापे का जिक्र खुसूसन इसलिए किया तिकाज बुजरस मज मालिस माज हुंद मिजाज चिड़चिड़ापनुक शिकार गसन, यानी मोल मोज यह सह तमे एंगल सोचन युस जवान सोचन, बल्कि कुरान पाक वनन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिस शख्स को हम बुढ़ापे तक पहुंचाते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, उसको हम बिल्कुल बच्चे की तरह वापस लौटाते हैं। इस पर बच्चे कर लकन लकन चीजन पे जिद, इस पर बच्चे तमिस पता आसन खुशी क्या गो, गम क्या गो, या पोस क्या गो, हु क्या गो। इसी तरह बुढ़ापे में भी एक इंसान बिल्कुल बचपन की हालत में फिर से लौट आता है, वो भी वही शरारतें, वो भी वही चिड़चिड़ापन, वही मस्करापन इख्तियार करता है युस बच्चे कारण। मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमान अत बुजरस मज त वला तकुल लहुमा उफिन वला तनहरुमा, न करजक उफ न झिड़किजक, यानी न करजक खंग सुनजक। वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनके सामने अपने आप को जलील करके रखो। और आख माना अमिक उमन ब्रोट कन बिछज पन्ने रहमत पार, और एक माना इसका मुफस्सिर लिखा है कि उनके सामने अपने आप को जलील करके रखो। क्या मतलब जलील करके? यानी अपनी कोई हैसियत ही वहां पर तस्वुर न करना, बल्कि मालिस माज ब्रोट कन तिथ कट रोजन जैसे आपकी कोई हैसियत है ही नहीं, जैसे आप उनके सामने कोई शय ही नहीं है। वला तकुल लहुमा उफिन वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा रब्बयानी सगीरा, और बी क्या आसक तिहंद खतर दुआ करन ऐ बारिदा खुदाया यमन पेट कर तिथै कट रहम, यमन पेट कर सुई रहमतच नजर यस रहमतच नजर उम बचपनस मज मे पेट कर, यानी जिस तरह इन्होंने मुझे पाला पोला शफकत के साथ मुझे देखते थे, मुझे पालते पोसते थे, खुदाया यमन पेट कर सुई रहमतो मामला। अब ये है वालिदैन के हुकूक। और अकिस हदीस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आमद कि फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कि जो शख्स अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ रहमत और शफकत की नजर डालेगा, यानी यह शख्स पन्निस मालिस माजे रहमत तो शफकत सान अख नजर त्राई, तो एक नजर के बदले में उसे एक कबूल हज और उम्रा का सवाब मिलता है। अमिस अकिस नजर मिलन कोता अख कबूल हज तो उम्रुहुक सवाब। अब खुद अंदाजा लगाइए माँ बाप का क्या मकाम है। और अकिस हदीस में फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हम सबों को ये याद है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, यानी जन्नत इस तहता अक़दाम उम्महातिकुम, वो आपकी माँ के कदमों के नीचे। और अकिस हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह कि बाप जो है ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, यानी मोल चीज जन्नत के दरवाजा मज चाहे तो इसे बनाओ चाहे तो इसे बिगाड़ दो, मशी पानस तान सह यह दरवाज संवार खा पन्ने खतर बना खा ये एंट्रेंस जन्नतस गसन क्या कर पन्ने खतर बंद। तो ये वालिदैन के हुकूक हैं, इसीलिए सबसे पहले किन का जिक्र आ गया? वालिदैन का हक। अब हदीस मज आमुत अख शख्सा अख दर खिदमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करुन या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बताइए कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, मखलूक में सबसे ज्यादा हक किस पर, यानी अल्लाह के बाद मखलूक का यह हक है, तो इनमें सबसे ज्यादा मुझ पर किसका हक है? फरमोस उम्मुक, तुम्हारी माँ का। बी को अर्ज बी वो नस उम्मुक, त्रेमी लट को अर्ज, तो बहरहाल फिर से कहा क्या? उम्मुक, यानी 3 बार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माँ का हक गिनाया। फिर इसके बाद जब फिर इस्तिफसार हुआ तो फिर फरमाया गया
कि वह अबू का, इसके बाद आपका किसका हक है? आपके बाप का हक है। गो मखलूक मज सारे खुद ज्यादा यम जन हुकूक सारे खुद ज्यादा सिला रहमी हुंद युस जन हकदार सह कुस? मोल तो मोज। अच्छा, इनके साथ क्या सिला रहमी हो? इनके साथ ये सिला रहमी हो कि इनके लिए वक्त निकाला जाए। सारे खुद बड़ कुर्बानी की यहूदी खतर गस क्या करना? वक्त निकाला जाए, इनके सामने बैठा जाए, इनकी बातें सुनी जाए, इनके मशवरों पर गौर किया जाए, इनके साथ दिल लगी की बातें की जाए पर एक दोस्त से कारण। और अगर ये तकलीफ में हूं तो उनकी तकलीफ को दूर करने की भी कोशिश की जाए। क्या मतलब तकलीफ में हूं? अगर ये कर्जस में मुब्तला, इनके कर्ज की अदायगी के लिए कोशिशें की जाएं। अगर ये जिस्मानी तौर पर कोई मर्जस में लाक तो उनका दवा दारू का इंतजाम किया जाए। अगर ये थके हुए हैं तो इनकी थकावट दूर करने का भी इंतजाम किया जाए। कुन साथ मोट दी, कुन साथ ये मालिश करें। ये सब कुछ किस में आता है? माँ बाप के और वालिदैन के हुकूक अदा करने में। बल्कि रवायतन मुझ आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कि अख शख्स दर खिदमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्ज करन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोन बच्चे युस हाज वो मेरे हक ही अदा नहीं करता है। सुना मे कुन वुशन तह मेरे हुकूक अदा करन कहें। बहरहाल अब इसका मामला यानी शिकायत कर कमिस पन्निस बच्चे सन। बहरहाल यम सातन जन यह अत बचाव अन्न या इसका लड़का जब लाया गया तो बहरहाल उससे इस्तिफसार किया गया कि आप इनका हक क्यों नहीं अदा करते हैं? तम को यहाँ में सोरे पान कमोमुत, ये सब मैंने अपने हाथों की कमाई की, ये पर आज वन मैं ये पान बनो हुई पर। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप किसके हो, यानी चुकुहुन छो। इसका मतलब यह है कि इसकी दौलत पर, आपकी कमाई पर, आपकी जो माल मता इस पर सबसे पहला हक किसका है? माँ बाप का हक है। अवै रसूलुल्लाह अकिस हदीस में फरमावत कि इस जन अल्लाह तबारक तआला की रजा जो है वो माँ बाप की रजा में है। यानी यमिस शख्स मोल मोज रज आस तो समझना चाहिए तब जाकर उसका अल्लाह भी उसके साथ राजी हो सकता है। अगर न मोल मोज रज आस, कितने भी तहज्जुद वो पढ़े, कितने भी रोजे भी वो रखे, कितने भी उम्रा वो करे, कितने भी हाज वो करे, बहरहाल अल्लाह के यहाँ उनका कोई मकाम या कोई मर्तबा नहीं है जब तक कि उसके माँ बाप उसके साथ राजी ना हूं। तब सारी खुद गणत वन अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। ये तो अल्लाह का हक हो गया हुकूकुल्लाह, मगर हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक किनका है? वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। आखिरी बात आज से दर्स वो ये है, वह आसन क्या लुक तुम जिनको ये नदामत हो कि हमने तो जिंदगी में उनकी कदर ही नहीं की, अब तो वो मर गए हैं, अब उनके हक कैसे अदा करूं? बहरहाल अम खतर हदीस मज और इसमें भी जो हमारे फुक़हा और उलमा ने इसका भी रास्ता बताया है वो ये है कि उनके लिए दुआई मगफिरत करता रहे। बहरहाल सूरज तुमन खतर क्या करन, हालांकि माँ बाप अगर जिंदा हूं तब भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जिंदगी तीन खतर मगफिरत दुआ करन और आफियत की दुआ भी करनी चाहिए। और जो मर चुके हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करे, उनके लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करे। और सारे खुद बेहतरीन दुआ सुई कुरान पाकस मज आमद मालिस माज खतर। एक है यही रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दूसरा है रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फिरली, ऐ म्यानि खुदाया मे कर मगफिरत, वली वालिदैया बी के मिसकर मगफिरत म्यानिन वालिदैन, रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन बी कर सारी मुमिनन मगफिरत, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, किस दिन? जिस दिन हिसाब कायम होगा। ये बेहतरीन दुआ युस इंसान केमिस खतर है करित, पन्निस मालिस माज खतर है करित। और इसके अलावा उनके लिए ईसानी सवाब करता रहे, उनके नाम पर सदका करता रहे, उनके नाम पर नेक अमाल करता रहे। बहरहाल इनका सवाब भी माँ बाप को पहुंचता है। और ब्याक हक ये कि उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो दोस्त हैं बहरहाल उनके साथ अच्छा मामला करे। यम जन मालिस माज दोस्त आसन या तम सद रिश्तेदार आसन तुमन सत गो रुत मामला कर, उनको कभी दावत पर बुलाए, उनकी जियारत करने के लिए कभी जाए, या अगर उनकी कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को दूर करने की भी कोशिश की जाए। ये हुकूकन मज। और तीसरा हक यह है कि कभी कभी उनके कब्र पर जाकर उनके कबूर की जियारत करे। बहरहाल तिहजन कब्रन पे गए वहां उनके लिए दुआई मगफिरत करे। कभी सूरह मुल्क पढ़े, तिकाज फरमो रसूलुल्लाह सूरह मुल्क के पढ़ने से कब्रों में रोशनी आ जाती है। तो मस्जिद क्या ही वन यानी उससे भी तफावत होती है अज़ा में। बहरहाल
قبرن پہ گھن تہذ زیارت کریں. بہرحال یہ بھی حقوق الوالدین میں سے ایک حق ہے. بہرحال یم تم حق یم زن جناب محمد رسول اللہ سمو والدین ہی بیان کر، اور قرآن بھی ان کے بارے میں انتہائی اہتمام کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. رب العالمین منگو دعا کہ رب العالمین دین اسے حقوق اللہ تی صحیح معنی مز ادا کرو توفیق، اور حقوق العباد بالخصوص والدین ہند حق ادا کرنے دین توفیق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.